বন্ধুসকল, আধাৰ চিডিং কি, আধাৰ লিংকিং কি, ডিবিটি কি, এই সকলোখিনি আপোনালোকে গম পায়নে? এই সকলোবোৰ নোহোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি অসুবিধা ভুগিব পাৰে সেইটো অতি জানিবলগীয়া বিষয়। এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অতি সহজে বুজি পাব যে ডিবিটি কি, আধাৰ চিডিং কি, আধাৰ লিংকিং কি। ডিবিটি হৈছে চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি নাগৰিকসকলক উপভোগ কৰিবলৈ দিছে, যেনে আপোনাৰ PM কিষাণ, PMAYG স্কিম, অৰুণোদয়, তাৰপৰা আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপ, এই সকলোখিনি আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাবৰ কাৰণে ডিবিটিৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিছে। চৰকাৰী স্কিমৰ সুবিধা লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আধাৰ চিডিং আৰু আধাৰ লিংকিংটো কৰাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এই ডিবিটিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহক, আধাৰ চিডিং আপোনালোকৰ এক্টিভ হৈ আছে নে নাই হোৱা সেইটো কেনেকৈ গম পাব? UIDAY এই যে দেখিছেনে ৱেবছাইটটো, তাত গৈ আপোনালোকৰ আধাৰ ষ্টেটাছ যেতিয়া চেক কৰিব তেতিয়া গম পাব যে তাত আপোনালোকৰ আধাৰটো এক্টিভ হৈ আছে নে ইনএক্টিভ হৈ আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ইনএক্টিভ দেখে তেতিয়া আপোনালোকে বেংকত গৈ যেতিয়া বেংক কৰ্মচাৰীক ক'ব যে আপোনালোকৰ আধাৰটো লিংক কৰি দিয়ক, তেতিয়া বেংক কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকক ক'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ বেংকত আধাৰ লিংক হৈ আছে। তেতিয়া আপোনালোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে আধাৰ যদি আগৰ পৰাই লিংক হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ চিডিঙৰ ষ্টেটাছত কিয় আপোনালোকৰ ইনএক্টিভ দেখাই আছে? তাৰো উপায় আছে। তাৰ বাবে আপোনালোকে NPCI ৱেবছাইটত যাব, গৈ পেলাই তাত 4টা বেংকৰ অনলাইন আপোনালোকক আধাৰ চিডিং কৰিব পৰা সুবিধা কৰি দিছে। আপুনি নিজেই এই NPCI ৱেবছাইটত যাব আৰু নিজৰ চিডিংটো কৰি ল'ব। আৰু যদি অনলাইন নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, বেংকলৈ যাব, বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ ওচৰত গৈ পেলাই চিডিং ফৰ্মখন ল'ব, এইখন ফিল আপ কৰিব আৰু জমা দিব আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন। সেই ফৰ্মখন জমা দিয়াৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আধাৰ চিডিং হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ চিডিং হ'ল, আধাৰ লিংকিং হ'ল, এতিয়া ডিবিটিৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া চৰকাৰে দিয়া সকলো স্কিমৰ সুবিধা আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যিসকল লোকে MGNREGA জব কাৰ্ডত কাম কৰে সেইসকলে এই কামটো অতি শীঘ্ৰেই কৰক, যাতে নহ'লে তেওঁলোকে জব কাৰ্ডত কাম কৰাৰ সুবিধা একদমেই নাপাব। কাৰণ তেওঁলোকৰ পইচাটো কেনেকৈ সোমাব জানিছেই ন, ডিবিটিৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰে পইচা আজিকালি প্ৰত্যেকজন বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত। বন্ধুসকল, আধাৰ চিডিং, লিংকিং, ডিবিটিৰ বিষয়ে যদি মই কোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু ভালকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কানাড়া বেংকৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আৰু সবিশেষ গম পাওক। सरकार डीबीटी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं जैसे कि PM किसान, स्कॉलरशिप स्कीम्स इत्यादि के द्वारा लाभ प्रदान करती है। ये लाभ आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से बेहतर, सरल और सुगम ढंग से कुशलता पूर्वक प्रदान किया जाता है। आधार पेमेंट ब्रिज के लिए लाभार्थी को अपने आधार को खाते में सीड करवाना होता है। यह वीडियो सीडिंग प्रक्रिया पर लाभार्थी के प्रश्नों पे स्पष्टता प्रदान करेगा। नमस्कार सर, मैं आधार सीडिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। आधार सीडिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आधार नंबर को बैंक NPCI मैपर पर मैप करता है। बैंक द्वारा आधार सीडिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद ही किसी खाते में आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग में क्या अंतर है? आधार लिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक आधार नंबर को अपने कोर बैंकिंग में बचत खाते के साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस और पहचान के तौर पर लिंक करते हैं, जबकि आधार सीडिंग में बैंक आधार नंबर को कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ NPCI मैपर में भी मैप करते हैं। क्या मैं अपने विभिन्न खातों को NPCI मैपर में सीड करवा सकता हूँ? नहीं, आप सिर्फ एक समय में एक ही बचत खाते को आधार से सीड करवा सकते हैं। आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट किस किस माध्यम से कर सकते हैं? आप आधार सीडिंग रिक्वेस्ट अपने बैंक में व्यक्तिगत रूप से जाकर तथा कंसेंट फॉर्म भरकर या जो भी बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं उनके ऑनलाइन बैंकिंग पेज पर जाकर रिक्वेस्ट जमा कर सकते हैं। क्या आप मुझे रिक्वेस्ट जमा करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे? सबसे पहले आप आधार सीडिंग कंसेंट फॉर्म भरें और हस्ताक्षर करके ब्रांच में जमा करें। KYC सही होने के बाद बैंक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में आधार लिंकिंग करता है और उसके बाद NPCI मैपर पर अपडेट करता है। अगर मेरा आधार पहले से किसी बैंक में सीडेड है और मैं दूसरे बैंक में सीडिंग करवाना चाहता हूँ तब भी यही प्रक्रिया रहेगी? हाँ, प्रक्रिया यही रहेगी। सिर्फ आपको अपने पुराने बैंक का नाम कंसेंट फॉर्म में भरना होगा जहाँ पर आपका आधार पहले से सीडेड है। बिना पुराने बैंक का नाम बताए हुए नए बैंक में सीडिंग संभव नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आधार वर्तमान में किस बैंक के साथ सीडेड है? इसके लिए आपको NPCI की वेबसाइट पर बेस प्लेटफॉर्म में या UIDAI की वेबसाइट में सीडिंग स्टेटस चेक करना होगा। लाभार्थी NPCI की वेबसाइट पे जाकर कंज्यूमर टैब पे क्लिक करें, बेस सेलेक्ट करें, आधार नंबर एंड कैप्चा एंटर करें और अपने रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे प्राप्त OTP को जमा कर अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करें। लाभार्थी UIDAI की वेबसाइट पे भी आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकता है। पसंदीदा भाषा चुनें, माय आधार टैब पर जाएं और आधार सर्विस मेन्यू में जाकर बैंक सीडिंग स्टेटस ऑप्शन चुनें। आधार नंबर एंड कैप्चा एंटर करें और अपने मोबाइल नंबर पे प्राप्त OTP को जमा कर अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करें।
ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि सीडिंग सफल हुआ है कि नहीं? सीडिंग सफलतापूर्वक होने पे बैंक लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS भेजता है। आप NPCI के बेस प्लेटफॉर्म और UIDAI की वेबसाइट पे जाकर ऊपर बताई प्रतिक्रिया को फॉलो करके आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैंने ब्रांच में सीडिंग रिक्वेस्ट जमा किया था, फिर भी मेरा सीडिंग नहीं हुआ है। आपको अपने बैंक ऑफिसर से पूछना चाहिए कि उन्होंने लिंकिंग के बाद NPCI मैपर पर सीडिंग की रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं। अगर किसी कारण से रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो बैंक को रिस्पॉन्स में रिजेक्शन का कारण बता दिया जाता है, जिसके अनुसार बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है और आपको बैंक अफसर से ये पता करना है कि बैंक ने सुधारात्मक कार्रवाई की है या नहीं। पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद सर। अब मैं आपके बैंक के साथ अपना सीडिंग प्रक्रिया करवा रहा हूँ और सीडिंग के सफलतापूर्वक होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।